Hello everyone, good afternoon. I hope I hope each one of you are good and your exams went well. So today in the class, what we are going to start with, when we ended class some 15 days or 14 days back, what we were discussing alternating current, right? I discussed most part of it. So in today's class, I thought to complete whatever was left. And from Thursday, we will be starting with the ray optics. Okay. Chalo. So let's start with the thing. First, I will take you through uh, what we are going to read in this topic. So what we are going to read is, we are going to read LC oscillation and then we will go through transformer. Done. Before we start with this two left topics, let's revise what we have studied in our previous classes. Okay. So basically, if I uh, just wait for 1 minute. Okay. So let's get started now. So we discussed what things. We discussed what is AC current, what is DC current. So what was AC current, and what was the basic difference? AC current is current where not only magnitude changes but direction also changes, right? So that is the basic point where we differentiate between AC current and DC current. Then we studied RMS values and we studied purely resistive circuit, purely inductive, purely capacitive. So many things we studied, but just previous to this class, we studied LCR circuit. Okay? So I will just draw a LCR circuit and through it, I will take you through all the topics that we have studied till now in AC. Okay? So LCR circuit will look like what? LCR circuit will look like there will be L यानी कि इंडक्टर और क्या होगा कैपेसिटर होगा और एक रजिस्टर होगा है ना और ये किससे कनेक्टेड होगा एसी बैटरी से ठीक है मैंने बताया था बैटरी का वैल्यू हम लोग हमेशा ही क्या लिख रहे थे कुछ ऐसे done current here we can assume as what I is equal to Im sine omega t plus phi यानी कि we are assuming that phi is the phase difference between current and voltage in this LCR circuit. So how we can calculate phi? तो मैंने आप लोगों को बताया था बहुत ही simple term में कि ऐसा एक triangle बना लो इधर रेजिस्टेंस को लिख लो इधर क्या लिखोगे XC माइनस XL एंड ये क्या हो जाएगा फाई हो जाएगा ठीक है सो tan फाई का वैल्यू कितना होगा tan फाई होगा XC माइनस XL बाय R सो दैट इज हाउ वी विल कैलकुलेट फाई डन तो फाई निकाल लिया हमने अब क्या निकालना है IM व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ IM तो अब आप देखो IM मैंने क्या बोला था IM कैसे निकालोगे मैक्सिमम करंट है तो मैक्सिमम वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस now what will be the R equivalent of this circuit done so R equivalent हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे R plus XC minus XL का whole square done root under sorry R square plus XC minus XL का whole square root under this is called impedance है ना अगर आप लोगों को याद हो तो this was your impedance and impedance is written as Z equal to R square plus XC minus XL का whole square root over ठीक है सो अगर मेरे पास LCR सर्किट है और मुझे चीजें सॉल्व करनी है यानी कि उस सर्किट में अगर करंट निकालना है तो करंट का इक्वेशन ऐसा होगा IM का वैल्यू हम निकाल सकते हैं ऐसे फाई का वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से ठीक है नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि इफ इन LCR सर्किट वी हैव टू टॉक अबाउट पावर कंजम्पशन सो पावर कंजम्पशन के लिए मैंने क्या बताया था VRMS IRMS cos phi अगेन दिस इज द फॉर्मूला VRMS क्या होता है अगर इस सर्किट में आप ध्यान से देखो यहाँ पे वोल्टेज ऐसा है यहाँ पे VRMS क्या हो जाएगा V0 by √2 IRMS क्या हो जाएगा I0 by √2
और cos phi कैसे लिखोगे आप? इस ट्रायंगल से cos phi निकाल सकते हो। अगर मुझे परपेंडिकुलर का वैल्यू पता है, बेस का वैल्यू पता है, हाइपोटेनस निकाल सकते हो। ये कितना होगा? XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, सो यहाँ से cos phi निकाल सकते हो एंड दैट विल गिव यू द पावर कंजम्पशन इन LCR सर्किट। फर्दर आई सेड यू इफ सर्किट विल बी कैपेसिटिव और इंडक्टिव इन नेचर, दिस LCR सर्किट, अगर तुमसे कोई पूछता है कि ये सर्किट का नेचर कैसा है, नेचर तीन तरह के हो सकते थे, एक कैपेसिटिव, दूसरा इंडक्टिव और तीसरा रेजिस्टिव। ठीक है, तो चलो कैपेसिटिव कब होगा हमारा LCR सर्किट? कैपेसिटिव इन नेचर कब होगा? जब हमारा XC ग्रेटर देन XL होगा। इंडक्टिव इन नेचर कब होगा? इंडक्टिव इन नेचर तब होगा जब XC इक्वल टू XL होगा, है ना। और रेजिस्टिव इन नेचर कब होगा? रेजिस्टिव इन नेचर तब होगा जब हमारा XC सॉरी इंडक्टिव इन नेचर ऐसा होगा, और रेजिस्टिव कब होगा? जब XC इक्वल टू XL। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LCR सर्किट बीइंग कैपेसिटिव? तो अब आप ध्यान से देखो, tan phi का वैल्यू क्या था? XC माइनस XL बाई R। अगर मेरा ये XC ग्रेटर देन XL है तो ये पॉजिटिव होगा, यानी कि मेरा जो फाई है वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट है वो, क्योंकि करंट के वैल्यू को आपने क्या लिखा था? आपने लिखा था ओमेगा टी प्लस फाई, यानी कि अगर फाई पॉजिटिव है तो करंट का फेज एट एनी टाइम टी यू विल राइट एज ओमेगा टी प्लस फाई, राइट? सो इफ दिस इज ओमेगा टी प्लस फाई, दिस इज द फेज, एंड वोल्टेज क्या था हमारा? Vm sin ओमेगा टी। डन। सो व्हाट इज द फेज लाइक, किसका फेज ज्यादा है? करंट इज लीडिंग और वोल्टेज इज लीडिंग? डेफिनेटली करंट इज लीडिंग। So if circuit is capacitive in nature, it means current will lead voltage. Inductive, current will lag behind voltage. Resistive, current will be in phase with the voltage. ठीक है, सो ये सारी चीजें हमने क्या की थी? पढ़ी थी, है ना। नेक्स्ट हमने और भी क्या देखा था हमने? सो एक्चुअली देखो, पढ़ा तो हमने बहुत चीज है। प्रीवियस 2-3 क्लासेस को रिवाइज करना एक साथ बहुत मुश्किल है, क्योंकि वी हैव गॉन थ्रू ए लॉट। बट आज जो मैंने तुम लोगों को रिवाइज करवाया, अगर तुम्हें ये चीज भी पता है, यू कैन सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस ऑफ LCR सर्किट। डन। सो तुम्हें पता होना चाहिए कि LCR सर्किट का L नहीं है, R नहीं है, और L है, R है, C और R है, कैसे सॉल्व करेंगे? सो सिंपल है, LCR सर्किट का अगर सोल्यूशन जानते हो, यू कैन सॉल्व एनी सर्किट of alternating current. ठीक है, that is why I took you through this discussion. Okay, now we will start with the next topic, that is your LC oscillation. Just give me 1 minute, we will start very soon. So now we are going to start with what? LCR circuit, sorry, LC oscillation. ठीक है, so first we will have a look at LC circuit. सपोज कर लो, व्हाट द केस इज हियर, एक्चुअली हमारे पास एक कैपेसिटर था, ठीक है, एंड दिस कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, सो इट इज फुल्ली चार्ज्ड। डन। हियर इट्स लाइक दिस. Now this is fully charged. What we are doing to this capacitor, we are connecting it to a inductor. ठीक है, यहाँ पे इंडक्टर है। जैसे ही हम लोग कनेक्शन को मेंटेन करेंगे, व्हाट विल हैपन? करंट विल फ्लो लाइक दिस। ठीक है, करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा। क्लियर है? एंड इफ करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, इस सर्किट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? इस सर्किट में हम लोग लिख सकते हैं इस सर्किट में केवीएल लिख सकते हैं। ठीक है, सो चलो केवीएल लिख कर देखते हैं क्या वैल्यूज आएगा। सो व्हाट वैल्यू वी विल गेट? सपोज आई एम स्टार्टिंग विद द पॉइंट ए। डन। सो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या लिखोगे? अगर कैपेसिटेंस सी है, एट एनी टाइम टी चार्ज को क्यू ले लो, सो क्यू बाई सी होगा। डन। सो नेगेटिव टू पॉजिटिव वे आर मूविंग, वी विल राइट क्यू बाई सी माइनस इंडक्टर के अक्रॉस अगर करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस साइन लेते हैं, माइनस एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि दिस इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, राइट, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0.
बिकॉज केवीएल क्या कहता है, सम ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दो वोल्टेज का सम है, राइट? सो सम ऑफ दिस टू वोल्टेज विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। नाउ L di by dt will be equal to what? Will be equal to Q by C. Again, here we can write I is equal to dq by dt. Current क्या होता है? Rate of change of like rate with which charge is flowing, right? That is your current. So I can be written as dq by dt. Now here we need to be very careful with the sign. Sign क्या है हमारा? जैसे देखो कैपेसिटर को मैंने क्या बोला था, इनिशियली फुल्ली चार्ज है, तो ऑब्वियसली टाइम के साथ क्या होगा, इस पे जो चार्ज है वो रिड्यूस होगा, घटेगा, यानी कि चार्ज घट रहा है। इसका मतलब dq का ओरिजिनल साइन, इनहेरेंट साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। डन। और मुझे इस रेट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो अगर इसको पॉजिटिव बनाना है इस रेट को, तो यहाँ पे क्या देना होगा? एक नेगेटिव साइन। इसलिए हम लोग इस इक्वेशन में आई को क्या लिखेंगे? माइनस डी क्यू बाई डी टी, नॉट डी क्यू बाई डी टी। क्यों लिखा ऐसा? क्लियर है? चलो, सो नाउ इफ यू आर गोइंग टू राइट माइनस एल, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी बाई डी टी, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू क्यू बाई सी। नाउ माइनस साइन को मैं इधर लेकर जा रही हूँ, व्हाट वी कैन राइट इट हियर लाइक, आप यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हो? एल डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? माइनस क्यू बाई सी। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? माइनस वन बाई एल सी क्यू। अब एक काम करो, इस इक्वेशन को बहुत ही ध्यान से गौर से देखो। ऐसा कुछ इक्वेशन तुम लोगों को 11th क्लास में जब तुम लोग एसएचएम पढ़ रहे होगे तब मिला होगा। इफ यू लुक एट इट वेरी केयरफुली, यहाँ पे देखो ये डबल डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे Q है। डन। और डबल डिफरेंशिएशन किसका है? चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पे भी चार्ज है। अगर तुम लोग एसएचएम का इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन को याद करो, तो वो इक्वेशन हमारा कैसा था? वो इक्वेशन था डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, कुछ ऐसा था। डन। सो ये जो इक्वेशन है वो एसएचएम की इक्वेशन से काफी ज्यादा रिलेट कर रहा है। डन। अब क्वेश्चन ये है कि जो हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था वहां पे एसएचएम किसका हो रहा था, और यहाँ पे अगर इक्वेशन ऐसा आ रहा है तो एसएचएम किसका होगा। एंड दैट इज व्हाई अभी तुम लोगों को नाम धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि ये एलसी सर्किट में एलसी ऑक्सीलेशन क्यों ऐड हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे मैंने दो केस लिए हैं, एक तुम्हारा एलसी सर्किट ले लिया है। ठीक है, हमारे पास एक है एलसी सर्किट और दूसरा क्या है हमारा? स्प्रिंग मास सिस्टम है। अगर तुम लोग अच्छे से याद करो तो स्प्रिंग मास सिस्टम में क्या था? अगर ऐसा स्प्रिंग मास सिस्टम है तो ये ऑक्सीलेट कर रहा था, है ना? एसएचएम परफॉर्म कर रहा था। और इसका इक्वेशन क्या आया था? अगर गौर से तुम लोगों को अगर याद होगा तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के बाई एम, माइनस के बाई एम एंड एक्स। ठीक है, कुछ ऐसा था। डन। एंड दिस k by m was termed as what? This was termed as your omega square, if you remember. तो ये ऐसा था। डन। यहाँ पे ऑक्सीलेशन किसका हो रहा था? इस मास का। और ये मास किस टर्म में ऑक्सीलेट कर रहा था? डिस्प्लेसमेंट के टर्म में, राइट? सो ये मास इधर डिस्प्लेस हो रहा था बाय x डिस्टेंस, and then again it was coming back to its equilibrium position, again it was coming inside, सो एक्स के टर्म में ऑक्सीलेट कर रहा था। अब देखो यहाँ पे जो एलसी सर्किट है उसका जो इक्वेशन मुझे आया है वो क्या आया है? डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वेयर वन बाई एल सी क्यू। तो यहाँ पे ऑक्सीलेशन किसका होगा? चार्ज का। और चार्ज किसके किसके बीच में ऑक्सीलेट करेगा? यहाँ पे सर्किट में दो चीज है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है। सो चार्ज विल ऑक्सीलेट बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये चार्ज क्या होगा? ऑक्सीलेट करेगा। अगेन अगर हम लोग यहाँ पे कंपैरिजन को इस्टेब्लिश करें तो हमें क्या दिखेगा कि के बाई एम जो है वो उसका एनालोगस, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन भी था, उसका एनालोगस क्या है? वन बाई एल सी। यानी कि इस सर्किट का ओमेगा स्क्वायर क्या है? वन बाई एल सी। अब देखो तुम्हारे एनसीईआरटी में ये कॉलम दिया हुआ है, दैट इज व्हाई आई हैव टेकन इट हियर। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन में देखो x किससे कंपेयर हो रहा है? x हो रहा है q से कंपेयर हो रहा है।
अब आप देखो K बाई M किससे कंपेयर हो रहा है, 1/LC से। अब मुझे ये देखना होगा कि K का एनालॉगस क्या होगा, मास का एनालॉगस क्या होगा। तो जब मैं पढ़ा रही थी तुम लोगों को इंडक्टर, वहां पे मैंने बताया था कि एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या होता था, हाफ LI²। और मैंने बोला था कि जो L है वो मास से एनालॉगस होगा, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया उसको बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल इनर्शिया को कौन इंडिकेट करता है, अगर ये बताना है तो क्या कहोगे, इंडक्टर। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते हो, हाफ mv²। और एनर्जी स्टोर्ड ऑन इंडक्टर क्या लिखते हो, हाफ LI²। सो m वाज गेटिंग कंपेयर्ड विथ L। m क्या है, इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इनर्शिया क्या रिप्रेजेंट करेगा, L। सो L इज डेफिनेटली रिप्रेजेंटिंग m। सो अगर मास के लिए L है तो K किसके लिए हो जाएगा, K हो जाएगा 1/c के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मास, इंडक्टेंस सेल, फोर्स कांस्टेंट 1/c, x चार्ज q, v v क्या होता है, dx/dt। तो I क्या होता है, dq/dt। सेम मैकेनिकल एनर्जी हाफ kx² प्लस हाफ mv², है ना। और यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, एनर्जी कुछ इंडक्टर में होगा, कुछ कैपेसिटर में होगा, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कैपेसिटर में एनर्जी क्या लिखते हैं हम लोग, q²/2c या हाफ mv², सॉरी हाफ cv²। ठीक है, और एनर्जी स्टोर्ड ऑन इंडक्टर क्या लिखेंगे, हाफ LI²। सो दिस इज अ क्वाइट अ गुड कंपैरिजन, यहाँ से क्वेश्चन भी कभी कभी आया है। ठीक है, तो याद रखना। अब देखो चार्ज एंड करंट एट एनी टाइम t। अब हम लोग इक्वेशन पे आते हैं। तो देखो इक्वेशन क्या है, Q इक्वल टू, मैंने क्या बोला था कि इनिशियली हमारा कैपेसिटर क्या है, फुल्ली चार्ज। तो यहाँ पे मुझे लिख लेने दो, एट t इक्वल टू 0 Q इज इक्वल टू Q0, दैट इज मैक्सिमम। इनिशियली कैपेसिटर इज चार्ज टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, और उस टाइम पे ये इंडक्टर से कनेक्टेड नहीं था, जस्ट उसी समय वी कनेक्टेड इट टू इंडक्टर, करंट फ्लो होगा, चार्ज का वैल्यू घटे। ठीक है, तो अभी अभी हमने क्या देखा कि जो चार्ज है वो ऑक्सीलेट कर रहा है, किसके किसके बीच, कैपेसिटर और इंडक्टर के बीच, है ना। इक्वेशन से हमें पता चल गया। और अगर कोई चीज ऑक्सीलेशन में होता है, एसएचएम में होता है, उसका इक्वेशन कैसे लिखते थे। अगर तुम लोगों को क्लास 11th में याद होगा, अगर कोई बॉडी एसएचएम में है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या लिखते थे, एक्स इक्वल टू क्या लिखते थे, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कुछ ऐसा लिखते थे, है ना। तो यहाँ पे भी चार्ज ऑक्सीलेशन में है, Q इक्वल टू मैक्सिमम चार्ज Q0, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ पे भी चार्ज का एम्पलीट्यूड यानी कि मैक्सिमम चार्ज Q0। साइन क्या लिखोगे यहाँ पे, ओमेगा टी प्लस फाइव। अब मैंने तुम लोग एसएचएम में पढ़े होगे, जब इक्वेशन ऑफ वेव लिख रहे होगे तो भी पढ़ा होगा कि ये जो फाई है वो फेज कांस्टेंट होता है। इट विल टॉक अबाउट कि इनिशियली चार्ज कैसा है। ठीक है, तो फाई का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, बाय पुटिंग टी इक्वल टू 0। तो अब आप एक काम करो, टी का वैल्यू क्या रख दो, 0। तो t का वैल्यू 0 पे q का वैल्यू क्या है, Q0। तो यहाँ पे आप Q0 रखो, Q0 इक्वल टू Q0, t का वैल्यू 0, तो साइन फाइव, यानी कि फाइव का वैल्यू क्या हो गया, π/2। अगर फाइव π/2 हो गया, अगर यहाँ पे फाइव का वैल्यू π/2 रखोगे, तो साइन ओमेगा टी प्लस π/2 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। डन। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि Q को हम लोग क्या लिखेंगे, Q को लिखेंगे Q0 cos ओमेगा टी। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ Q इन LC ऑक्सीलेशन सर्किट इज दिस, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया इक्वेशन। अब मुझे निकालनी है करंट। तो करंट क्या होता है, पिछले एक्सरसाइज और पिछले जस्ट सम मिनट्स बिफोर आई टोल्ड यू, करंट को dq/dt नहीं माइनस dq/dt लिखना है। तो आप लिखो इसको और सॉल्व करो। तो क्या होगा, माइनस टी Q0 cos ओमेगा टी बाई डी टी। कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, सो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Q0 ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, सो करंट का वैल्यू कितना आया, Q0 ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर तुमसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि अगर चार्ज, मैक्सिमम चार्ज का वैल्यू Q0 है, तो मैक्सिमम करंट का वैल्यू बताओ, कितना बताओगे मैक्सिमम करंट, Q0 ओमेगा। ठीक है, दिस इज योर मैक्सिमम करंट, राइट।
तो इस फॉर्मूला से हमने ये सीखा कि इक्वेशन कैसे लिखना है चार्ज का, करंट का इक्वेशन कैसे आएगा, और अगर मैक्सिमम चार्ज क्यू नॉट है तो मैक्सिमम करंट हमारा क्या होगा, दैट इज योर क्यू नॉट ओमेगा। अगर मुझे इन दोनों का ग्राफ बनाना है तो देखो क्यू हमारा क्या आया था, क्यू है क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, और करंट हमारा कितना है, दैट इज योर क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, दिस आर द थिंग्स, राइट। अगर आप इसको ध्यान से देखो, एक कॉस का ग्राफ है एक साइन का है। कॉस का ग्राफ कैसे होता है, कॉस का ग्राफ ऐसे होता है, साइन का ग्राफ कैसे होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, डन। तो यहाँ पे जो ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ है उसमें आइडेंटिफाई करो कौन क्यू का है, ये क्यू का ग्राफ है, और ये किसका ग्राफ है, करंट का। अब आप ध्यान से ये देखो कि जब मेरा क्यू मैक्सिमम है तब करंट क्या है, 0, और जब मेरा क्यू आई करंट मैक्सिमम है, जब यहाँ पे करंट मैक्सिमम होगा उस टाइम पे देखो क्यू का ग्राफ यहाँ पास कर रहा है, यानी कि क्यू 0 है डेफिनेटली, क्योंकि दोनों के ग्राफ में कितने का फेज डिफरेंस है, π/2 का, है ना। क्योंकि इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस π/2, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, π/2 का। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड डिफरेंस, राइट। सो ये π/2 हुआ, ओवर, डन। इसका मतलब क्या है कि जब चार्ज मैक्सिमा पे होगा करंट 0 होगा, जब करंट मैक्सिमा पे होगा चार्ज 0 होगा, ठीक है, डन। और यहाँ पे दोनों का ही वैल्यू सेम हो रहा है, करंट और चार्ज दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये कौन से टाइम पे एक होगा, कैसे निकालोगे, तो देखो कॉस और साइन का वैल्यू एक कब होता है, कितने एंगल पे होता है, π/4 पे, तो डेफिनेटली ओमेगा टी क्या होना चाहिए, π/4। यहाँ से तुम टाइम को इजिली निकाल सकते हो, ठीक। ऐसे भी अगर सॉल्व करोगे तो क्यू को आई से बराबर कर दो, कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी लिखो, फिर यू विल सॉल्व, यू विल गेट। लेकिन जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ यू कैन से कि लाइक ओके, नो 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 नो, मैंने ये जो लिखा ये गलत हो सकता है अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम नहीं हुआ तो, ठीक। इसलिए बेटर है प्रोसीजर से जाओ। तो प्रोसीजर क्या होगा, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी को किससे इक्वेट करोगे, क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा, and if you will equate you will get the thing, okay, done. If their amplitude is same, that's if omega is 1, then answer will be omega t equal to π/4, otherwise it may be different, right? So that you need to calculate, okay, chalo. So this is clear. Now let's see energy stored at any time t. So at any time t अगर मैं कैपेसिटर पे एनर्जी स्टोर्ड निकालूं तो कितना होगा, एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर क्या लिखोगे, हाफ CV स्क्वायर, ठीक है, हाफ CV स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब देखो एट एनी टाइम t क्यू का वैल्यू क्या होगा, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दैट, तो दैट इज क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, तो इसका स्क्वायर करोगे आप डिवाइडेड बाई 2c, डन। यानी कि एनर्जी एट एनी टाइम t ऑन द कैपेसिटर विल बी हाउ मच, इट विल बी क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2c, ठीक है। नाउ एनर्जी ऑन इंडक्टर एट एनी टाइम t क्या होगा, हाफ Li स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिखो हाफ Li स्क्वायर, हाफ L, I का वैल्यू क्या होगा, I था हमारा क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। सो दिस इज दिस, नाउ हाफ L क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ऐसा है, ठीक है। अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी इन द सर्किट एट एनी टाइम टी, तो टोटल एनर्जी आप कैसे निकालोगे, एनर्जी ऑन कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑन इंडक्टर, ठीक है। तो एक काम करो, आप इन दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ L क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ओमेगा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अभी अभी मैंने बताया था कि जब हमने इक्वेशन लिखा था तो इक्वेशन क्या लिखा था, d2q/dt स्क्वायर किसके बराबर था, -1/LC तो 1/LC ही तो था ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/LC, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब आप इसको सॉल्व कर लो। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, सी देखो L कैंसिल हो जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c, यहाँ भी क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c है, कॉमन ले लो,
क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी को अगर आप कॉमन लेते हो तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। सो दिस विल गिव यू वैल्यू इक्वल, ये तो 1 हो जाएगा, तो कितना होगा क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी। अब देखो यहाँ पे जो भी हमारा फाइनल टोटल एनर्जी एट एनी टाइम टी का जो वैल्यू आया है उसको ध्यान से देखने की जरूरत है कुछ चीजों को समझने के लिए। जैसे अब ध्यान से यहाँ पे देखो, जैसे ये जो कैपेसिटर था, इस कैपेसिटर का स्टेटस या इस इंडक्टर का स्टेटस इनिशियली क्या था, t इक्वल टू 0 की मैं बात कर रही हूँ। सो इनिशियली कैपेसिटर मेरा फुल्ली चार्ज था, है ना, उस पे चार्ज था क्यू नॉट, राइट, और इंडक्टर पे कोई भी करंट नहीं था। डन। सो एट t इक्वल टू 0 की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी ऑन कैपेसिटर कितना था, क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी, और एनर्जी ऑन इंडक्टर क्या था, 0। कब, ये दोनों कब हुआ था, जब t इक्वल टू क्या था, 0 था। यानी कि इनिशियली एनर्जी ऑफ द सर्किट कितना था, क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी प्लस 0, यानी कि क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी। और एनर्जी, टोटल एनर्जी एट एनी टाइम टी भी कितना आ रहा है, क्यू नॉट स्क्वायर बाई टू सी। यानी कि हमारी जो एनर्जी है वो कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, कहीं भी एनर्जी का लीकेज नहीं हो रहा। एनर्जी जैसा इनिशियली था वैसा ही एनी टाइम टी पे है, इसलिए तो हमारा सिस्टम ऑक्सीलेशन पे है, समझ रहे हो। इसलिए क्योंकि अगर अगर हमारे सिस्टम का एनर्जी लीक हो रहा है तो और धीरे धीरे वो ऑक्सीलेशन डाई आउट कर जाएगा, है ना। यहाँ पे ऑक्सीलेशन सस्टेन हो रहा है, इसका मतलब ही ये है कि जो एनर्जी है उसकी लीकिंग क्या है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज समझा। डन। सो एनर्जी जैसा इनिशियली था वैसा ही कोई एनी टाइम टी पे होगा। डन। बट आइडियल, ये आइडियल केस है। अगर रियल केस की बात करें तो इस इंडक्टर के पास जैसे तुम लोग इसको और दूसरी तरह से भी समझ सकते हो। जैसे हमने पढ़ा था, अगर तुम लोगों को याद होगा, तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट जब हम लोग पढ़ रहे थे तो पावर कंजम्पशन अक्रॉस कैपेसिटर क्या था, 0। प्योरली इंडक्टिव सर्किट जब हमने पढ़ा था तो पावर कंजम्पशन अक्रॉस इंडक्टर क्या था, 0। यानी कि कैपेसिटर कोई पावर कंज्यूम नहीं करता, ना ही तुम्हारा इंडक्टर करता है। और यहाँ पे सिर्फ कैपेसिटर और इंडक्टर है, यानी कि पावर कंजम्पशन क्या होगा, ये पावर को खाएगा नहीं, यानी कि इसकी एनर्जी सिस्टम की क्या रह जाएगी, कांस्टेंट, नो लीकेज। पावर कंजम्पशन किसकी वजह से आता है, रजिस्टर की वजह से आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दिख रहा है कि जैसा एनर्जी इनिशियली था वैसा ही एनी टाइम टी पे। डन। सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। नाउ वन थिंग दैट आई वाज डिस्कसिंग, आई फॉरगॉट, क्या बोल रही थी मैं। ओके, जस्ट गिव मी 30 सेकेंड। ओके, ओके, मैं भूल चुकी हूँ कि मैं क्या बोलने वाली थी, ठीक है। बट आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। इसलिए यहाँ पे पावर कंजम्पशन क्या है, 0 है, इसलिए एनर्जी क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है, चेंज नहीं हो रही, ठीक है। डन। एंड इसलिए यहाँ पे ऑक्सीलेशन भी सस्टेन हो रहा है, वो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन नहीं है। या आई वाज डिस्कसिंग कि ये सारी चीजें जो अभी मैंने एक्सप्लेन की वो आइडियल केस है। आइडियल केस क्यों, क्योंकि जो भी इंडक्टर अवेलेबल होता है हमारे इन्वायरमेंट में उसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होगा, और अगर किसी इंडक्टर के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू है तो वो पावर को कंज्यूम करेगा, है ना, क्योंकि उसके पास सम रेजिस्टेंस भी है। जैसे कहीं कहीं क्वेश्चन में तुम्हें मिलेगा, कहीं कहीं क्वेश्चन में तुम्हें मिलेगा कि चलो मैं इधर ही एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज कर लो, कभी कभी क्वेश्चन में तुम लोग देखा होगा कि एक इंडक्टर दिया हुआ है, इसका एल वैल्यू भी दिया हुआ है, आर वैल्यू भी दिया हुआ है। इसका क्या मतलब होता है कि जो इंडक्टर है, सिंस वो किसी मटेरियल से बना है, किसी भी मटेरियल में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इसलिए आइडियल केस में ये ऑक्सीलेशन डैम्प्ड नहीं होगा। बट अगर रियल केस ले तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होगा इस इंडक्टर का, और पावर कुछ ना कुछ कंज्यूम होगा ओवर टाइम, और धीरे धीरे ऑक्सीलेशन डाई आउट कर जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें यहाँ पे इसका डायग्राम बनाना है, किसका डायग्राम, एनर्जी वर्सेस टाइम का, तो एनर्जी वर्सेस टाइम का डायग्राम कैसा दिखेगा, इफ यू सी केयरफुली, तो कैसा दिखेगा।
अब देखो ईसी का डायग्राम कैसा होगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी जैसा, और ईटी का डायग्राम, सॉरी ईएल का डायग्राम कैसा होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा डी का। चलो आई फॉरगॉट टू टेक अनदर पेज, एक्चुअली आई हैड इंसर्टेड बट पता नहीं वो दिख नहीं रहा। एनीवे देयर माइट बी एनी इशू। अब आप देखो अगर मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे देखो अगर मुझे कॉस का डायग्राम अगर मैं बनाती हूँ तो कॉस थीटा का डायग्राम ऐसा होता है। अगर मुझे कॉस स्क्वायर थीटा का डायग्राम बनाना है तो स्क्वायर का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं, साइन के स्क्वायर कॉस का स्क्वायर, जो भी नेगेटिव साइड है उसको पॉजिटिव साइड में ले जाओ, तो ऐसा होगा। यानी कि जो मेरा कॉस स्क्वायर थीटा का, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा का जो ग्राफ होगा वो मेरा कैसा दिखेगा, वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा। तो साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ कैसा होगा, उसके लिए जो भी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कर दो। ठीक है, यानी कि अगर तुम्हें चार्ज ऑन कैपेसिटर, सॉरी एनर्जी ऑफ कैपेसिटर वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है तो ऐसा होगा, और अगर एनर्जी ऑन इंडक्टर वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है तो कैसा बनाओगे, ऐसा। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा मुझे, अगर इन दोनों को आपने ऐड कर दिया तो टोटल एनर्जी मिलेगा, और टोटल एनर्जी का वैल्यू क्या था, कांस्टेंट था। टोटल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, कांस्टेंट, ऐसा देखिए। ठीक है, इन दोनों ग्राफ को एक साथ बना के भी कंपेयर कर सकते हो किस टाइम पे एनर्जी कैसी होगी, सो दैट यू कैन डू। डन, मैंने बेसिक चीजें तुम लोगों को बता दी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वी विल रीड ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर है क्या और इसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ते हैं, तो चलो पहले ये देखते हैं। सो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या करता है कि ये तुम्हारा वोल्टेज को वन वोल्टेज लेवल को अदर वोल्टेज लेवल में वो क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है, जैसे जैसे देख लो, अगर ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के पास जो वोल्टेज है वो 1000 वोल्ट है। अब 1000 वोल्ट पे करंट तो अगर हमारे घर पे भी 1000 वोल्ट के करंट को डायरेक्टली भेज दिया जाए तो हमारे घर में जो अप्लायंसेस है वो क्या हो जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे, वो ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा ट्रेजेडी हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए कि जो ट्रांसफार्मर से जो भी करंट सप्लाई हो रहा है वो कोई एक सब ट्रांसफार्मर के, सॉरी वो कोई एक, अच्छा मैं पहले ही ट्रांसफार्मर का नाम ले रही हूँ। एक काम करो, जो पावर स्टेशन होता है ना, पावर स्टेशन को इमेजिन करो, ठीक है, टू अंडरस्टैंड इट इन अ मोर बेटर वे। तो जो पावर स्टेशन होता है वहां पे सपोज करो पावर जनरेट हुआ, और यहाँ पे जो पावर जनरेट हुआ वो 1000 वोल्ट। ठीक है, इस पावर जनरेटेड को, करंट जो भी जनरेट हुआ है उसको घर तक भेजना है। ठीक है, तो जो हमारे घर तक आएगा वो 1000 वोल्ट का तो नहीं पहुंचना चाहिए, है ना, ऐसा होगा तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाएगी। सो वी नीड पावर सप्लाई एट लोअर वोल्टेज, राइट। सो वोल्टेज को, एक वोल्टेज को दूसरे वोल्टेज फॉर्म में कन्वर्ट करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ रहे हो। तो ट्रांसफार्मर का काम यही है कि पावर स्टेशन से हम किस में भेजते हैं, ट्रांसफार्मर में, फिर ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके हमारे घर तक भेज देता है। ठीक है, सो दैट इज द फंक्शन बेसिकली, इट चेंजेस वन वोल्टेज लेवल टू अदर वोल्टेज लेवल विदाउट चेंजिंग इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो दैट इज द वर्क ऑफ योर ट्रांसफॉर्म। अब देखो ये बनता कैसे है और किस प्रिंसिपल पे काम करता है। सो इट विल वर्क ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस, वी विल सी लेटर हाउ। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ, अब देखो ये इसका काम ये है, इट्स वर्क इज दिस, एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच इट वर्क्स, एंड दिस इज द कंस्ट्रक्शन। सो कंस्ट्रक्शन हियर इज वेरी सिंपल। कैसा कंस्ट्रक्शन है हमारा, इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ कॉइल इंसुलेटेड विथ ईच अदर। ठीक है, हम लोग दो कॉइल को लेंगे और दोनों ही कॉइल क्या होंगे, एक दूसरे से इंसुलेटेड होंगे। यानी कि उस पे लाइक अगर ये एक कॉइल है तो इस पे एक इंसुलेटेड मटेरियल का कोटिंग होगा। ठीक है, और दूसरी कॉइल होगी वो भी क्या होगा, उस पे भी इंसुलेटेड मटेरियल का, सॉरी इंसुलेटर का एक कोटिंग होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसा होगा। जैसे देखो हमारे एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम दिया हुआ है, इट इज व्हाट टेकन हियर। तो यहाँ पे देखो तुम्हें क्या है, बेसिकली क्या बताया गया कि हमारे पास ट्रांसफार्मर में टू कॉइल्स होंगे। ठीक,
तो एक कॉइल को हम बुलाएंगे प्राइमरी कॉइल, दूसरे कॉइल को बुलाएंगे सेकेंडरी कॉइल। अब देखो इन दोनों कॉइल को हमें यूज कैसे करना है, दैट्स द क्वेश्चन। डन। यूज कैसे करना है मतलब उसको रखेंगे कैसे, तो उसको जिस चीज के अराउंड रैप करेंगे वो तुम्हारा होगा सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर पे रैप करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक ये सॉफ्ट आयरन कोर लिया हुआ है, यहाँ पे तुम्हारा ये सॉफ्ट आयरन कोर है। डन। अब इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन ये होगा कि सबसे पहले ये देखो कि रैपिंग कैसे करेंगे। तो देखो फर्स्ट फिगर में क्या दिखाया गया है कि ये एक लिम्ब है, एक ये सॉफ्ट आयरन कोर का एक लिम्ब है, और इसी पे एक कॉइल को जैसे फर्स्ट फिगर में ऐसे किया गया, ये लिम्ब है, एक कॉइल को ऐसे रैप किया गया, फिर दूसरे कॉइल को ऐसे रैप कर दिया, यानी कि एक ही लिम्ब पे दोनों ही कॉइल को रैप किया गया। इसका क्या सिग्निफिकेंस है दैट वी विल सी लेटर। और यहाँ पे देखो दो लिम्ब पे किया गया है, एक लिम्ब पे एक कॉइल को, दूसरे लिम्ब पे दूसरे कॉइल को। दिस इज आवर अनदर स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ रहे हो? तो दो कॉइल है, एक को प्राइमरी बुला रहे हैं, दूसरे को सेकेंडरी। अब चलो आंसर करना शुरू करते हैं कि किसमें क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हम सॉफ्ट आयरन कोर क्यों ले रहे हैं। तो तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो कि सॉफ्ट आयरन जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करेगा। यानी कि अगर जैसे मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि अगर सोलेनॉइड है और अगर सोलेनॉइड के थ्रू करंट पास करते हो तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। अगर इसी सोलेनॉइड को आयरन कोर पे रैप कर दिए और यहाँ पे अगर करंट को पास किया तो ये जो आयरन कोर है ये भी मैग्नेटाइज होगा और इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इस केस से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आयरन कोर पे जब हम यहाँ पे जो कॉइल्स है ये भी सोलेनॉइड के जैसा है। डन। सो अगर आयरन कोर पे रैप करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा और वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, दैट वी विल सी लेटर। सेकेंड थिंग है कि अलग अलग रैप करने का क्या फायदा होगा, सॉरी एक के ऊपर एक को रैप करने का क्या फायदा होगा, वन ओवर अनदर, राइट। सो यहाँ पे ऐसा हुआ है। इसका फायदा ये है, जैसे देखो यहाँ पे अगर मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया, सपोज कर लो एसी वोल्टेज से, जो पावर स्टेशन है वहां पे जो वोल्टेज जनरेट हुआ उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अगर इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया तो यहाँ से करंट ऐसे पास करेगा और जैसे ही इसमें करंट पास करेगा इसमें क्या जनरेट होगा, इसमें जनरेट होगा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हुआ है वो इसमें भी लिंक करेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। डन। सो वो फील्ड को यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। डन। और इस केस में अगर मैंने इस प्राइमरी को यहाँ पे अगर बैटरी को कनेक्ट किया, जो भी वोल्टेज बैटरी है, तो यहाँ पे करंट ऐसे जाएगा और यहाँ पे क्या जनरेट होगा, अगेन फ्लक्स जनरेट होगा। और सिंस सेकेंडरी कॉइल इसके ऊपर ही रैप्ड है तो जो भी फ्लक्स जनरेट हुआ प्राइमरी में वो सारा का सारा सेकेंडरी में लिंक हो जाएगा। यानी कि अगर ध्यान से देखो तो फर्स्ट केस में ए फिगर में सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स लिंकेज ज्यादा होगा और बी में फ्लक्स लिंकेज कम होगा, क्योंकि जो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इस रीजन से भी स्केप कर सकता है बाहर। ठीक है, सो यहाँ पे लिंकेज कम होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी। ओके, अब आप ध्यान से देखो कंस्ट्रक्शन को, कॉइल्स आर वुंड ऑन ए सॉफ्ट आयरन कोर आइदर वन ऑन टॉप ऑफ अदर एज इन फिगर ए और सेपरेट लिम्स ऑफ द कोर एज इन फिगर बी। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब आप देखो क्या है, सपोज कर लो कि प्राइमरी कॉइल के पास कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, एनपी नंबर ऑफ टर्न्स है, एंड सेकेंडरी कॉइल के पास कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, सेकेंडरी कॉइल के पास एनएस नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, चलो नाउ कैसे ये ऑपरेट करेगा अब हम लोग ये देखते हैं। ठीक, सो व्हेन एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी व्हाट विल हैपन, रिजल्टिंग करंट प्रोड्यूसेस एन ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स व्हिच लिंक द सेकेंडरी। यहाँ पे जो मैं अभी अभी तुम लोगों को बता रही थी कि अगर तुमने यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट किया, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट
ऑल्टरनेटिंग सोर्स को अगर कनेक्ट किया तो प्राइमरी में क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड। सिंस करंट चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो भी टाइम के साथ चेंज होगा, यानी कि वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स ये जनरेट करेगा। सेकेंडरी से भी वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। ठीक है, सो ये है तुम्हारा फर्स्ट स्टेटमेंट। और अगर सेकेंडरी में चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो, सॉरी, सिंस उसके पास वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा। कहने का मतलब कि अगर प्राइमरी को वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है जो कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स है, तो सेकेंडरी में भी क्या जनरेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा थ्रू म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ओवर। अब देखो सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस का वैल्यू होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, क्योंकि तुम लोगों ने पढ़ा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सपोज कर लो ये मेरा पहला कॉइल है प्राइमरी, ये है दूसरा कॉइल सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो किस में लिंक होगा, सेकेंडरी में लिंक होगा। अब सेकेंडरी कॉइल के पास जितना, जैसे सपोज कर लो एक टर्न के साथ 5-1 फ्लक्स लिंक हुआ, तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतना ज्यादा फ्लक्स लिंकेज होगा। डन। और अगर फ्लक्स लिंकेज ज्यादा है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू क्या होता है, -n d∅dt, वेयर phi is flux through single loop, flux linkage through single loop, and n is the number of turns, राइट। सो ये हमने पढ़ा है म्यूचुअल इंडक्टेंस में, राइट। सो इसलिए लिख रहा है वैल्यू ऑफ दिस ईएमएफ डिपेंड्स ऑन व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी। ठीक है, अब आप देखो वी कंसिडर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर। अब आइडियल ट्रांसफॉर्मर क्या होगा, इन विच प्राइमरी हैज नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। सबसे पहला केस मार्क कर लो इसको, एंड ऑल द फ्लक्स इन द कोर लिंक्स बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स। यानी कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर का केस क्या होगा, आइडियल ट्रांसफार्मर का दो केस हुआ। पहला कि ये जो प्राइमरी कॉइल है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 0। ये क्यों ले रहे हैं बाद में देखेंगे, ठीक है। बट दूसरा स्टेटमेंट काफी क्लियर है, आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा, फ्लक्स लिंकेज जो है वो 100% होगा। यानी कि कोई भी फ्लक्स बाहर की तरफ एस्केप नहीं होगा, लीक नहीं होगा। जितना फ्लक्स प्राइमरी में जनरेट हुआ है वो सारा का सारा सेकेंडरी में लिंक होगा। और अगर ऐसा होगा तभी हमारा ट्रांसफार्मर क्या होगा, आइडियल होगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि रियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा, कुछ ना कुछ फ्लक्स क्या हो जाएगा, स्केप करेगा, लिंक करेगा, सारा का सारा लिंक नहीं हो पाएगा। और आइडियल ट्रांसफार्मर बनाने का तरीका क्या होगा कि प्राइमरी का मटेरियल ऐसा लेंगे प्राइमरी कॉइल का जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, और प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल के ऊपर रैप करेंगे, तभी हमारा फ्लक्स लिंकेज का चांस 100% होगा। इस केस में आइडियल ट्रांसफार्मर नहीं बन सकता, इस केस में चांस ज्यादा है। ठीक है, समझ गए। सो दैट इज दैट। अब देखो सपोज कर लो 5 फ्लक्स है जो ईच टर्न के साथ लिंक हो रहा है ड्यू टू करंट इन द प्राइमरी, एंड व्हेन अ वोल्टेज Vp इज अप्लाइड टू इट। कहने का मतलब कि जब प्राइमरी कॉइल से एक वोल्टेज कनेक्ट किया गया जिसके एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या बताया गया यहाँ पे, या फिर कोई भी टी टाइम पे उस वोल्टेज का वैल्यू क्या है, Vp है सपोज। सो अगर ऐसा है तो सेकेंडरी में जो फ्लक्स लिंक हो रहा है थ्रू सिंगल टर्न, उसको कितना लिया गया है, यहाँ पे 5 लिया गया है। ठीक है, सो समझ गए Vp क्या है, 5 क्या है। अब आप देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी into d∅dt, where phi is what, flux linkage through single turn, right? So यहाँ पे ये हुआ। अब आप आगे देखो, alternating flux phi also induces an EMF called back EMF in the primary। अब देखो प्राइमरी कॉइल में क्या हो रहा था, प्राइमरी कॉइल ये था, इसको हमने किससे कनेक्ट किया था, एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया। हमने दो चीज पढ़ा है कि अगर किसी भी कॉइल में अगर करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगा वो भी चेंज होगा, यानी कि इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसी कॉइल में बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बुला रहे थे, सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेकेंडरी कॉइल में तो वोल्टेज जनरेट होगा ही होगा बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, प्राइमरी कॉइल में भी वोल्टेज इंड्यूस होगा बिकॉज ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और उसी को हम लोग क्या बुलाते थे, बैक ईएमएफ।
सो वोल्टेज गेटिंग इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी ये आया, वोल्टेज गेटिंग इंड्यूस्ड इन प्राइमरी माइनस एमपी डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, समझ रहे हो? सो दिस इज दिस ओवर। अब आप ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देखो, बट ईपी इक्वल टू वीपी, ईपी इक्वल टू क्या लिखा है, वीपी, यही समझना है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल रहे थे कि प्राइमरी का रेजिस्टेंस 0 लेना है। इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखो, प्राइमरी कॉइल है, ठीक है, प्राइमरी कॉइल को हमने किससे कनेक्ट किया, एक आउटसाइड बैटरी सोर्स से, वीपी से। यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट हुआ वो मेरा क्या है, वो हमारा है क्या है, सॉरी, ईपी। ठीक है, अगर इस सर्किट में सपोज करो रेजिस्टेंस है, अगर इस सर्किट में रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, करंट जनरेट होगा। और अगर करंट जनरेट होगा तो क्या होगा, अगर करंट जनरेट होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगा, है ना, क्योंकि अगर करंट है और रेजिस्टेंस है तो आई स्क्वायर आर होगा। डन, तो पावर कंज्यूम हो रहा है यानी कि एनर्जी लॉस होगा। डन, और अगर रेजिस्टेंस नहीं है, करंट जनरेट नहीं होगा, और उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, ईपी इक्वल टू वीपी। समझ रहे हो? यानी कि रेजिस्टेंस का 0 होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेजिस्टेंस 0 होगा तभी मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी विल बी इक्वल टू वोल्टेज गेटिंग सप्लाइड टू इट, तभी ये इक्वल होगा। ठीक है, एक वोल्टेज दूसरे वोल्टेज को कैंसिल कर देगा, करंट क्या हो गया, 0। और अगर हमारा करंट 0 है, उस केस में हमारा क्या होगा, पावर कंजम्पशन 0 होगा। डन, एंड इस दैट इज व्हाई वी टोल्ड दैट कि प्राइमरी का रेजिस्टेंस क्या लेना है, हमें मिनिमम से मिनिमम लेना है। अगर रेजिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम होगा तभी हमारा ईपी इक्वल टू वीपी का चांस होगा। समझ रहे हो? डन है। So that is why we are taking it. Now ES equal to VS. That is ES is your what? ES basically ये तुम्हारा सेकेंड स्टेटमेंट को समझने का तरीका बेस्ट ये है कि VS ES तुम्हारा क्या था, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, और ईएमएफ वोल्टेज के बराबर कब होता है, ईएमएफ वोल्टेज के बराबर तब होगा जब आइदर सर्किट में करंट 0 है या सर्किट इनकम्प्लीट है। जैसे अगर यहाँ पे देख लो, ऐसा बैटरी है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ईएमएफ के बराबर होगा, है ना। अगर हमने इसको रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया तो इसी क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, ईएमएफ के बराबर नहीं होगा, ई माइनस आई आर के बराबर होगा। डन, तो ES इक्वल टू VS क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ प्राइमरी कॉइल के थ्रू वोल्टेज कनेक्ट किया है, सेकेंडरी कॉइल के थ्रू कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है ना। सो वो ओपन सर्किट है, अगर ओपन सर्किट होगा तो EMF विल बी इक्वल टू वोल्टेज, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस इज दिस। अगर ऐसा है EP इक्वल टू VP है तो ES को हम लोग क्या लिख सकते हैं, VS लिख सकते हैं, EP को क्या लिख सकते हैं, VP लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलो, अगर हम लोगों ने VP को यहाँ अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ES को क्या लिखा था, माइनस NS d5 बाई dt। सो और भी EP को क्या लिखा था, माइनस NP d5 बाई dt। सो VP क्या हो जाएगा, यही है ना तुम्हारा VP। ठीक है, और VS क्या है तुम्हारा, यही तो है VS। सो VP को लिख लो और VS को लिख लो। डन, सो EP और VP और VS हमने लिख लिया। नाउ इन आइडियल ट्रांसफॉर्मर जितना पावर हमने प्राइमरी को दिया है उतना ही पावर अपीयर होगा किसमें, तुम्हारा सेकेंडरी में। सो चलो पहले तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। सो VP बाई VS अगर करोगे, अगर इसको इन दोनों को डिवाइड करो, VP बाई VS करो तो क्या मिलेगा तुम्हें, बहुत ही सिंपल है, NP बाई NS मिलेगा ना। डन, सो VS बाई VP किसके बराबर होगा, VS बाई VP विल बी इक्वल टू NS बाई NP। यहां से मुझे एक रिलेशन मिला। ठीक है, डन, सो दिस इज वन रिलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन आया है। अब देखो दूसरा, इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर, जो मैं बात कर रही थी सम सेकेंड्स बिफोर, कि अगर तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर आइडियल है, 100% एफिशिएंट है, तो अगर कोई पर्सन 100% एफिशिएंट है तो उसमें जितना तुम इनपुट दोगे वो तुम्हें उतना ही आउटपुट देगा। तो अगर मेरा ट्रांसफॉर्मर 100% एफिशिएंट है तो इनपुट पावर क्या होगा, IPVP, क्योंकि पावर क्या होता है, V इंटू I। ठीक है, सो इनपुट पावर अगर IPVP है तो आउटपुट पावर मेरा क्या हो जाएगा, ISVS। ठीक है, अब आप इसको अगर देखोगे, कंपेयर करोगे तो VP बाई
IP बाई IS किसके बराबर होगा, यहां से कंपेयर करो, IP बाई IS किसके बराबर होगा, VS बाई VP। और अगर तुम लोग को याद होगा तो VS बाई VP किसके बराबर आया था, NS बाई NP। सो दिस इज द होल इक्वेशन दैट वी नीड टू रिमेम्बर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, यहां से ही हम लोग कैटेगराइज करेंगे कि कौन सा ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है। तो ट्रांसफार्मर दो तरह के देखेंगे, ठीक है। नाउ स्टेप अप ट्रांसफार्मर का क्या मतलब होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब कि अगर उसके प्राइमरी को आपने VP वोल्टेज दिया तो सेकेंडरी में जो वोल्टेज जनरेट होगा वो हमारा क्या होगा, ग्रेटर होगा VP से, दैट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो अगर स्टेप अप की बात करो तो VS क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन VP। और VS ग्रेटर देन VP कब होगा, जब NS ग्रेटर देन NP होगा, क्योंकि VS बाई VP किसके बराबर है, NS बाई NP। तो अगर मेरा VS ग्रेटर देन VP है, इट मीन्स NS इज ग्रेटर देन NP। सो इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी विल बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। ठीक, नाउ अनदर इज योर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। करने का, कहने का मतलब कि अगर प्राइमरी को वोल्टेज दिया VP, सेकेंडरी को वोल्टेज दिया VS, देन VP शुड बी ग्रेटर देन VS, वोल्टेज को कम करना है। ठीक है, तो ये कब होगा, जब हमारा NS लेस देन NP होगा। सो दिस इज ऑल फॉर्मूलाज और टर्म्स दैट यू नीड टू रिमेंबर इन ट्रांसफार्मर। नाउ एक्चुअल ट्रांसफार्मर जो होता है, जो आइडियल नहीं होता है, उसमें फ्लक्स लीकेज होगा ही होगा। जैसे आइडियल ट्रांसफार्मर में मैंने क्या बोला, फ्लक्स लीकेज 0 करना है, उसके लिए प्राइमरी को सेकेंडरी के ऊपर ही ओवरलैप किया था। स्टिल कुछ ना कुछ फ्लक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, लीक होगा। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में फ्लक्स लीकेज होता है। ठीक है, सेकेंड है रेजिस्टेंस ऑफ द वाइंडिंग्स। तो मैंने क्या लिया था, आइडियल ट्रांसफार्मर में रेजिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। लेकिन कोई भी चीज तुम बनाओ उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा। सो अगेन यहां से भी पावर लॉस होगा, यहां से भी पावर लॉस होगा। नाउ एडी करंट्स, एडी करंट्स क्या होते हैं कि अगर जैसे देखो इस मैग्नेटिक कोर पे हमने कॉइल को रैप किया था, इसके थ्रू जब वेरिएबल करंट जा रहा है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होगा। और अगर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के थ्रू अगर वेरिएबल करंट है, सॉरी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या होगा, एडी करंट जनरेट होते हैं। ठीक है, और एडी करंट है ये, अगर करंट है इसका कुछ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पावर लॉस होगा। एडी करंट कब जनरेट होता है, जब तुम्हारा वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स किसी भी कोर को फील होगा। ठीक है, सो दैट इज दिस। और हिस्टेरेसिस कर्व, हिस्टेरेसिस कर्व जब तुम लोगों को मैं बताई थी तो मैंने बताया था कि हिस्टेरेसिस कर्व का जो एरिया था, कर्व कैसा था, कुछ ऐसा था ना, ऐसा था। तो इसके अंदर का जो एरिया होता है वो एनर्जी लॉस की बात करता है। और हिस्टेरेसिस कर्व कब जनरेट होता है, जब कोई भी कॉइल में तुम क्या कर रहे हो, वहां पे मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है। और हमारे केस में तो मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल करंट दे रहे हैं हम लोग, है ना। तो अगर यहाँ से वेरिएबल करंट जा रहा है, एक बार क्लॉकवाइज, दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज, तो एक बार अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर जनरेट हो रहा है तो दूसरी बार मैग्नेटिक फील्ड इधर जनरेट होगा। यानी कि एक बार ये मैग्नेटाइज हो रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरी बार मैग्नेटाइज हो रहा है दूसरी डायरेक्शन में। डन। सो मैग्नेटाइजेशन अगर चेंज हो रहा है तो हिस्टेरेसिस कर्व होगा। और उस कर्व का एरिया क्या बताता है, एनर्जी लॉस इन द मैग्नेटाइजेशन। सो एनर्जी लॉस यहां से भी हो रहा है। अब देखो इतने सोर्सेस हैं एनर्जी लॉस के ट्रांसफार्मर में, मेरा टास्क क्या है, इन चीजों को मिनिमम करना। फ्लक्स लीकेज को मिनिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, एक कॉइल को दूसरे कॉइल के ऊपर ओवरलैप करेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स को कम से कम, ऐसा मटेरियल लेंगे जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो। ठीक है, एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग जो लिंप लेंगे उसका साइज कम से कम लेंगे और ऑल्सो इसको लैमिनेट करेंगे। ठीक है, और हिस्टेरेसिस कर्व मतलब यहाँ पे भी एक ऐसा मटेरियल लेंगे जिसके हिस्टेरेसिस कर्व का एरिया क्या हो, थिन। ठीक, सो दिस इज द वे हाउ वी कैन डिक्रीज लॉसेस। Done. So this is all we studied in today's class, and this chapter is complete. In next class, I will start with ray optics. Thank you for not attending the class. It's very much for your benefit. Don't attend classes. We will come, give lecture, and go back. Okay. Bye bye. Take care.